advantage of polio. Yeah, polio is one of the biggest work Rotary has done till now. And complete eradication from world was not just done by Rotary, it was the volunteers around the world. So joining hands with all the NGOs is our primary principle. That is not new for us. But how much sustainable we will be is a question in our local communities. And our current motto is diversity, equity and inclusion. Since we live in a country where huge diversities and almost all inequalities, so we need a point where we can be included. So coming specific to the project, how we can do this? Say we are running ICAM since past 2012, and we have joined hand with Sankara Eye Hospital of Anand, and we have done around 10,000 plus operations as of now, which can go into crores of cost. This camps we organize every twice a month. This is a joint effort on both sides, and I think in Jambusar Taluka there will be no cataract patient after a few period of time. So this was a very sustainable project which lasted for many years. But then there was one more project, a dialysis center we established in an hospital, a private hospital in Bharuch, which went wrong. Actually, the hospital did not support the machineries that were worth 35 lakhs rupees. And so we had to take it back and reinstall it in some better hospital, and it is now running. So there is where we need the trust, the joint venture, everything by bylaws, and I would say that an MOU with the partners is the must. So how we do it is also very much important. There are certain hurdles or some issues when we join hands with other NGOs. One of them in India is basically religion. Religion, regional and even political. These issues can hinder our overlapping with other NGOs, because at Rotary, as I said, we are DEIs, diverse, equity and inclusive. And whenever an NGO is working, they have the My Project, Mera Project, that kind of self-gain motives behind doing certain projects. So we at Rotary believe that what we do is only service and happiness for ourselves, right? So that principal motives are also important factors in sustainable, in maximizing the project. We cannot join hands with everybody, but yes, we have so many common things here, sir. As you said, you were working to women empowerment. I myself am doing this project, and what I have seen is even the social group is doing, and our Rotary Club Bharuch is doing. We all are doing in different aspects. But if we can join hands, we can bring difference to this program, and empower them in some other ways. Currently, we are just doing with sewing machines or say parlors or maybe some art and craft work, but we can do better in this area. There is one more area when the HRs are present here, we can propose that since the students, as you see them, they all are looking for jobs. Why can't both the presidents, me and doctor, we were thinking of a project that why can't we have a common platform of data wherein these aspiring students can be absorbed at your company, and your company can identify them without interviewing or just on the screen, and we collect this data from these aspiring students who wishes to join the company. And if you require them, all kinds of, not just the educated, the other people also who want job. So you can help us in job creation. And yes, the ambulancing. We also had an ambulance. We also have an ambulance. This was a different kind of thing. It is a Shav Vahini. We got it from government grant. It is still working and it is still useful. But after we made this Shav Vahini, even the government, local government also made a Shav Vahini, but it is not sustainable. It is now already almost not working. So as NGOs, you can trust us for your further services. Yeah. Thank you so much.
interesting is your perspective of doing something in the area of climate change. And I'm sure a lot of other NGOs would be happy to work with you, and even the other institutions and corporates would like to work with you on this. What you mentioned is very important, the attitude of being happy to serve rather than anything else. To be happy to serve is important. And nice initiatives on thoughts on, networking for women empowerment. I'm sure others would like to come forward. And even for job creations, I'm sure the corporate houses would like to come forward. So we will come to a question which I would like to ask at the end is, like Subodh Bhai was the change champion for the iCamp and he made it successful, you need such missionary people who will work as change champions if projects have to be sustainable. So we'll think of that later, and we now move on to Mrs. Meena Shah, past president of United Club of Mrs. Meena Shah. I'm so sorry, I forgot your name. I'm very sorry for this. Because And instead of her, yes, no problem, no problem. The past president, and let's listen to you, madam. Thank you. Thank you very much. Hello. IWC is the largest women's voluntary organization in the world. Means up to international level, club level, then district level, and then association, and then international level. So, and our motto of the club is main friendship, service, and fellowship. So, for friendship, we gather with so many, make many events like district events, rally, assembly, and conference. So there we meet so many club members and make friendship with them. Okay, service. हम लोग वो बच्चों के लिए भी प्रोजेक्ट करते हैं और वुमेन्स के लिए भी करते हैं. अभी हम लोग वो क्लासेस चला रहे हैं ब्यूटी पार्लर का और टेलरिंग का. तो वो वहाँ सब लड़कियाँ आती है और काफ़ी सब समझती है. उसके हमारा क्या होता है ना CSR और वो जन शिक्षण संस्थान के साथ हमारा प्रोजेक्ट है और हम लोग ये प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से करते हैं. वहाँ काफ़ी लड़कियाँ 40 to 45 ऐसे गर्ल्स आती है और वो सब सीखती है और काफ़ी खुश है. वो सब ये सब प्रोजेक्ट्स हैं. और फिर दूसरे भी हम सब प्रोजेक्ट्स करते हैं. आई डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, आई डोनेशन, फिर मेडिकल चेकअप कैंप, एक्सेट्रा, सो मेनी अदर्स. एंड ऐसे हम लोग की अभी ये थोड़े दिन पहले ही बहुत बड़े लेवल पर PDC मीट आनंद में हुई थी. वो इंटरनेशनल लेवल से थी और वहाँ 8 कंट्री के सब मेंबर्स भी आए थे और इंटरनेशनल प्रेसिडेंट भी आई थी और काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट था और बहुत अच्छा हुआ था. ऐसे इतना मैं बोलती हूँ क्योंकि मुझे आज पता नहीं था. बढ़िया 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 मीना. थैंक यू. ओके, खूब खूब शुक्रिया. I want to say on behalf of Innerville Club, Meena Ben and Rizwana Ben and Setali Ben, they are looking into this aspect of joining hands with the NGOs because in current happy street of government, many NGOs got together and they made it a platform for all the NGOs to come at this place. There was an NGO of blind people, HIV people, so Yeah. they are into this program already. Thank you. Thank And you. we wish you all the best, and let us know if our students can be helpful in any way. Thank you so much to bring about, to bring together all the NGOs. हमारे students अगर आपके काम आ सकते हैं तो कहीं भी किसी भी college के students है ना. Thank you Meena Ben once again, and over to you Dr. Vihang Sakaria. Thank you for being with us. Over to you. Good evening, everyone. Um, Hello. Good evening, everyone. Another Rotary Club.
One thing I would add, ધ્રુવભાઈએ બહુ સારી રીતના કીધું કે રોટરીનો શું રોલ છે and what Rotary is doing and the Rotary Foundation that is present. One thing that I want to add is that this Charity Navigator rating that Rotary has received is it is receiving it for consecutively last 5 years, not only 1 year. Yeah, it is more than 5 years. So this just shows that whatever work Rotary is doing through its foundation is very transparent and is trusted world over, not for a single year, but over the period of last 5 to 6 years. Because if you pick up any charity, any world charity, then whatever donation you give to a particular charity, only a certain percentage of that amount goes for real charity work. Other majority of percentage of amount goes for administrative work. As Dhruv clearly mentioned, that whatever you donate into Rotary, almost 90 to 95% of fund that you donate goes for the real charity work, because we as a Rotarian, through our fees, fund the administrative part of the Rotary International framework. That is one thing that I wanted to add. Now, coming to health and disease prevention, and now recently environment is also added. So if you see, then you will see that problem will fall in any one of these focus areas. So as a Rotarian, all the clubs do whatever best is needed for their particular local community. It is not like that we are following certain guidelines that are coming from the international level. That is just a framework for administrative purpose. But all Rotary clubs work independently in their own individual communities to bring about changes in that particular community. And the motto of Rotary is service above self. So all Rotarians adhere to this particular motto, and what we look into is whenever a particular project is being taken up, then one thing that we insist on is community-based need assessment. There are particular criteria and guidelines that has been laid out, through which we basically do a community assessment, what really community needs. And based on this community assessment, we plan projects on that particular thing, so that the projects are really need-based and the projects are really sustainable. Second thing I would like to comment is one thing about medical camp that madam mentioned. So this is healthcare is something that we regularly work in, and Rotary Club of Bharuch does mega medical camps, and these are not just checkup camps. All the patients that come into this particular camp are screened, and those people who need surgeries are segregated. They are recalled for surgeries, and that whatever needed surgeries and everything is being done on a yearly basis. So हमारा कैंप एक दिन नहीं चलता है, वो 3-4 महीने चलता है, जब तक लास्ट पेशेंट तक का ट्रीटमेंट नहीं हो जाता है. And we do it on year basis, every year almost. Just because of pandemic we couldn't do last 2 years, but then during those times we did need-based things, like Rotary Club of Bharuch started with a drug store for all the people, in which we were giving free medicines to everyone based on doctor's prescription, and these were free for everyone. There was no discrimination of any type, not based on caste, community, social or anything. कोई भी आके ले सकता था, ऐसा नहीं कि सिर्फ poor लोगों के लिए. Even middle class had a difficult time during this COVID, because even oral medicines like Febiflu and everything costed like 5 to 6,000 per patient, and every family had almost 5 to 6 patients in their home. So that particular time, Rotary Club of Bharuch had set up a drug store, and at one particular time when Febiflu was not available anywhere in Bharuch, not even single drug store, Rotary Club of Bharuch was dispensing it at free of cost to everyone who were coming. So these are certain things. And as a community development, women empowerment, we are doing regular projects.
yes, we would like to collaborate definitely, and we have collaborated with various companies over the period of time. We do school development projects, then we have a women empowerment project. Many of our projects are being, replicated by other NGOs. Recently, we have tied up with a company where a school in Valia, which caters to poor tribal people, and education is provided free of cost. And children from this school are getting very good result. And last year they secured ranks and secured admissions in medical colleges and dental colleges and pharmacy. Almost 40% of their children secured admission in professional courses. They had a big problem of, during the monsoon season, their whole school campus was getting waterlogged, and children cannot come to school. They have to walk through almost, chest feet water and go to school. So they approach us for this particular problem, that this is a problem that we are facing. So we checked out the location and tied up with corporate, and we started working on it, and now we are preparing a real their stormwater prevention system, wherein the water will not get logged, and before this monsoon it will get over, so that these children can get their education. Coming to what Dhruv said, I have a proposal for the job that you said. Why can't all the NGOs and corporate come together and have a job mela kind of a thing, where it would be a big fair where corporate come, who are the recruiters, and NGOs can work towards mobilizing the young forces who can come and they get the job. So this is something that we can work on together, various NGOs and corporate. And other than this, uh, we are open to working together, and we really want to do whatever is needed for the community. Thank you. Thank you so much, Dr. Sukhadia. What was appreciable is the emphasis on transparency to build trust and win trust of the community is very, very important. Your contribution to education is phenomenal in terms of imbibing the competency in the students to get admissions into professional courses. What you emphasized was important, that you have been, as an organization, sensitive to the demands of time and situation. So that is also very appreciable. And my question at the end would be, I mean, we will then come to the questions later, but your club, for what I know, has people across generations. I mean, very senior people and very junior people. Now, I'm not saying you need to bridge the gap between the two, but what I'm saying is, can you transfer the expertise, because the notion of community service then and the notion of community service today is very different, according to me. You may have differences, but that expertise needs to be transferred so well. So you can think about it, and with this, thank you once again, Dr. Sukhadia, for making it possible to come here. Uh, a big round of applause to all the panelists. Just one question from Kandat Bhai and Neelaben. Would you like to ask them something or share with them something where they can be helpful on a combined basis? Kandat Bhai, please. Our, please, anyway. And then we will move on to the second panel discussion. And okay, we'll take one more question from Trivedi sir, and then we move on to the next panel discussion. We are just 5 minutes beyond time, but we'll make up for the time. 4 was the next panel, but please give us that allowance, 5, 4, 5, 10 minutes. Hello, hello. Thanks, panelists. I'm really very delighted to have a platform on behalf of Kalro, actually. And I'm also thankful to Truptiven also for sharing us a platform, actually, for
what I can say that sharing our feelings for the children, those who are intellectually challenged. And our is the institute that is Kalrao, which is running since 1992 in the Bharuch, and this is the only institute in the Bharuch where such type of children are getting those who are intellectually challenged actually. So there are so many requirements for us actually, but some of the requirements which is I think might not be aware by the other corporates that I want to share that that is one Rajesh ji told that small smart classes, what you told actually. So our children are those who are intellectually challenged, and for us it is really very needed actually, where you have already provided so many smart classes to the nearby areas, nearby villages, and I am of the opinion that if you can provide us such a smart class to our children, then it will be most beneficial in looking to the intellectual disability which our students are having at this present. Second thing, our institute, which is working in a very special situation, which requires a special educator also. You see, generally teachers are available in a what I can say, but special educators that are very needed for our school. And in a nutshell, what can I suggest? What can I narrate? Special education, just for your knowledge, actually, that a personalized schooling given to a children with different disabilities, both physical and mental. The special educators are trained in specific disability that include learning disabilities, speech for languages impairment, and visual impairment. We require such type of special educator. Or no doubt we have one educator at our school, but we need one more actually to cater to the needs of our 92 students. And one educator that cannot cater to the needs of 92 students. Okay. Second thing, we require clinical psychiatrist. So it is also very needed actually. Clinical psychiatrists are physicians who specializes in using clinical practice in a treatment of mental illness and disorders, uh, including behavioral disorder, synchronicity, anxiety disorder, and addiction and counseling of parents with stakeholders. And third one, we require occupational therapist. This is also very new area for you actually. So many have told you that this ambulance and everything that is only needed, provided by everyone. But these are the new areas that you can help us. You can help to the Kalrao in a different way actually. So this occupational therapist, that is occupational therapy, is a type of health care that help us to solve the problem that interface with person's ability to do the things that are important to them, everyday things like self-care. Second thing being productive and leisure activity, that is sports, gardening and social activities actually. These are all our requirements that you can think in a different way, and I request all corporates to come forward and to help us out in this noble cause in which we are working in a very different way, in a different way actually. Okay, thanks to all of you. Thank you so much, Kandarbai. Thank you so much for expressing your needs, and this kind of sharing is very important. So we conclude with the first panel. I request you all to be seated on the opposite side and allow the second set of panelists to come forward. And at the end, we will take the question and answer sessions. So please be with us. Do not leave. Thank you.
much for everyone. Now I would like to request the panelists on a panel number 2, and the theme of this is drawing out futuristic agenda for optimizing contribution of NGOs and corporates towards building a sustainable community. And the panelists from corporate CSR, number 1, Mr. Vipin Kumar from Kolar, Mr. Hemraj Patel from Grasim Industries Limited, Mr. Rajesh Jani from Bostik India Private Limited, and Mr. Alkesh Rana from Jubilant. From NGOs, Mrs. Jigisa Jala from Gram Vikas Trust, Bharuch, Mr. Aditya Sharma from Sarthak Foundation, Mr. Rakesh Bhatt from Seva Yagna Samiti, Mr. Kapil Dave from Seva Rural. We all together welcome the second set of panelists. And again, as we went with the first set, we request each one of you to talk briefly on your company's projects and more importantly on your views on the topic, drawing out futuristic goals. We have learned from the first panel of how to maximize. Now, given the understanding that we need to have change champions, given the understanding that we need to create a platform where common man can approach you voluntarily instead of you going in search of them, where we have looked at issues like it's important to share so that everybody knows what's happening, and maybe I can copy something or learn something from the others, what is being done, and also pick up from there. And lots of things have been discussed in the first panel about how each one of us can collectively maximize what we are doing, maximize the impact of what we're doing, maximize the reach, maximize the multiplicity of activities and newer areas of address that we should pick up on. So we've looked at all those issues, but now we need to draw out an action plan of how we wish and aim to take it further to meet with the 17 SDG goals at the global level, but to start off at our community level, how we bring about sustainable development, what should be our future action. Thank you so much, and may I now start with Hemraj sir from Grasim Industries. Over to you, Hemraj sir. Thank you. Thank you very much. Grasim Industries लास्ट 75 years से एक क्षेत्र में काम कर रहा है, मतलब जो CSR की बात हम लोग अभी 2013 की बात कर रहे हैं, उससे पहले CSR में काम कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो डिस्कशन ऑलरेडी हो चुके हैं। 2-3 यूनिक प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और फिर कोलैबोरेटिव की बात करेंगे। We are focusing on education, health, environment, livelihood and rural development. Basically 5 pillars are there in CSR sector. यहाँ पे मैं एक उड़ान प्रोजेक्ट की बात करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे सिमिलर प्रोजेक्ट्स हैं जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जब एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग एजुकेशन में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं।
तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी हम लोग कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट्स कर रही हैं और एनजीओ के साथ भी मिलके कर रही हैं। उड़ान प्रोजेक्ट में हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया कि जो 10th पास गर्ल्स हैं जो हमारे सराउंडिंग विलेजेस में हैं, उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और जो एकदम अनडिप्राइवेड फैमिली से बिलोंगिंग करती थी और हमारे टच में भी थे वो लड़कियां, पर उनको कुछ करना था, उनको कहाँ पे भी स्कोप नहीं मिल रही थी। तो हम लोगों ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया और अभी हम उनको टेक्निकल एजुकेशंस में जो है कोर्सेज करवा रहे हैं और जो एओसीपी का कोर्सेज है। और वो जो 30 गर्ल्स है, मतलब हमारा ड्रीम है कि हमारा एक इपॉक्सी यूनिट है ग्रासिम का, वो यूनिट वो 30 लड़कियां हैं जो हैं वो आगे जाके वो चलाएंगी, ये हमारा ड्रीम है। तो अभी एक साल मोस्ट प्रोबेबली 8 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें उन लोगों ने सीख ली है, वो प्लांट में भी जा रही है और थियोरेटिकल भी कर रही है। तो ये हमारा एक नया इनिशिएटिव था जो हम लोग अभी उनके साथ कर रहे हैं। सेकेंडली एआई की यहाँ पे बात की थी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस की। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जिसको तुरंत स्टार्ट किया और उसका इम्पैक्ट नहीं आता है, पर उसको अगर 3 साल या 5 साल सस्टेनेबिलिटी के साथ अगर चलाया जाए तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा आता है। जैसे अभी हम लोगों ने एक एमएमजेसी के साथ इम्पैक्ट असेसमेंट करवाया, तो हम लोग 24/7 ये प्रोजेक्ट अभी चला रहे हैं। तो हमारा एक डॉक्टर्स है वो 24/7 वो सेंटर से पूरा उसको हैंडल कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमारा जो इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ उसमें हमने 1.75 करोड़ की एसेट हम लोगों ने क्रिएट की है। एसेट इन द सेंस की जो काल्फ है वो 3 साल के हुआ है और अभी उसकी जो मतलब अभी जो बाजार वैल्यू है उसकी 1.75 करोड़ के आसपास उसकी पहुंची है। तो ये वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन सीएसआर में सभी जगह से होता है। और एक दूसरा प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग ग्रासिम वन कहते हैं, जैसे यूपीएल भी काफ़ी कुछ एनवायरनमेंट में अभी काम कर रहा है। तो नेट जीरो की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कार्बन फुटप्रिंट की भी, तो इस साल हम लोग 80,000 प्लांट लगाने जा रहे हैं। उसमें से हम लोगों ने 60,000 प्लांट हम लोगों ने ऑलरेडी लगा दिए हैं जो बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करेंगे नेक्स्ट फ्यूचर्स में। तो प्लांट लगा के छोड़ना नहीं है, पर हम लोग उसको 3 साल तक बैक टू बैक उसके साथ रहते हैं। जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी को भी हम लोग उसमें साथ में रखते हैं। एक रिकॉर्ड भी हम लोगों ने अभी कायम किया है और उसको ग्रीनिज बुक के लिए भी हम लोगों ने भेजा है। 8.43 मिनट में हम लोगों ने 1740 ट्रीज लगाए हैं। तो ये एक अपने आप में काफ़ी अच्छी एक सफलता भी है। और हमने जैपनीज टेक्नोलॉजी भी अभी प्लांटेशन के लिए हम लोग अडॉप्ट किए हैं। तो एनवायरनमेंट में भी हम लोग काफ़ी अच्छा इस तरह से काम कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो जैसे कि मैं आपको बताऊं तो एक मोबाइल मेडिकल यूनिट का जो प्रोजेक्ट है जो सस्टेनेबल कैसे उस तरह को उसको किया जाए, जिसकी बात मैं थोड़ी यहाँ पे करना चाहूँगा कि हम लोग ओपीडी बेसिस जो एमबीबीएस डॉक्टर है वो वहाँ पे मेडिसिन फ्री मेडिसिन तो देते ही है, पर साथ में हमारा 3 महीने के बाद एक एनालिसिस होता है कि जो केसेस हैं वो किस तरह के केसेस आइडेंटिफाई हुआ है और उस केसेस के बेस पे हम लोग कैंप लगाते हैं, वहाँ पे मल्टी स्पेशलिस्ट कैंप लगाते हैं और एंड टू एंड उनको जो सर्विसेज है वो देने का हम लोग वहाँ पे प्रयास करते हैं, ताकि ऐसा नहीं कि हम लोग मेडिसिन दे दिए और मेडिसिन दे के फिर हम लोग वापस आ गए। दूसरी एक चीज़ है कि जब भी हमारा मेडिकल यूनिट वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे जो है हेल्थ अवेयरनेस के कैंप वहाँ पे लगाते हैं। जैसे कम्युनिटी में जाएगा और उसके में सायरन लगा हुआ है, माइक भी लगा हुआ है, तो अनाउंस करेंगे और फिर उसका वहाँ पे एक हेल्थ के रिलेटेड जो भी है उसके टॉपिक के आधार पे उनके वहाँ पे बात करें। दूसरे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसकी यहाँ पे डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से जो मेजर टॉपिक है उसके ऊपर अगर हम लोग फोकस करें तो मे भी अच्छा रहेगा कि ये डबल इंजन सरकार है। एनजीओ और कॉर्पोरेट की अगर हम लोग बात करें तो विदाउट एनजीओ कॉर्पोरेट चलेगा नहीं, और कॉर्पोरेट का जो पैसा है वो एनजीओ के माध्यम के थ्रू ही अच्छी तरह से यूटिलाइज हो सकता है, क्योंकि सारे क्षेत्र में कॉर्पोरेट की एक्सपर्टीज नहीं है। अगर ऐसे देखा जाए तो जैसे कि मैं सीएसआर हैंडल कर रहा हूँ, मैं सीएसआर देख रहा हूँ, तो मेरी एक्सपर्टीज हर क्षेत्र में नहीं है, हर क्षेत्र के डेप्थ में नहीं है। जैसे अगर एजुकेशन की बात करें तो प्रधान के साथ अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो प्रधान की एक अपने आप में एजुकेशन में डेप्थ है। जैसे एआई प्रोजेक्ट अगर हम लोग ले लेते हैं तो एआई मतलब बाइफ जो है वो सालों से हॉर्टिकल्चर वाड़ी प्रोजेक्ट में काम कर रहा है और एआई में काम कर रहे हैं, तो हम लोग वाड़ी प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं। करीबन 18 एकड़ हम लोगों ने वाड़ी अभी लगाई है। तो वो वाड़ी भी अभी जैसे मैडम ने बताया वैसे आप भी, मैं भी इनवाइट करता हूँ आप लोग को कि आप वहाँ पे आके देखें, और अगर मैंगो की सीजन में आओगे तो आपको मैंगो भी खाने मिलेगा। तो उनको हम लोग उस तरह से ट्रीट करते हैं कि जो फार्मर्स हैं
उनका कोई भी एक्चुअली टेक्निकल कोई क्वेश्चंस आया या उनको कोई हेल्प चाहिए तो हम लोग वर्कशॉप रखते हैं। वर्कशॉप में उनको उनके साथ सारी डिस्कशन करते हैं। उनको साइंटिस्ट को हम लोग बुलाते हैं जो एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट रहते हैं उनको। AI के कैटल कैम्प करते हैं, उसमें भी हम लोग इस तरह से बुलाते हैं। तो अभी करीबन हम लोग 6 से 7 ऐसी NGOs हैं जिसको कोलैबोरेटिवली हम लोग अभी काम करते हैं। जैसे सेवा रोलर यहाँ पे बैठी है, तो सेवा रोलर में भी हम लोग आई कैम्प वगैरह जो है उनके साथ करते हैं। राकेश जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो हमारा इपॉक्सी यूनिट जो है वो उनके साथ काम करता है। तो बहुत सारी दूसरी 2-3 NGO जैसे विकास सेंटर फॉर डेवलपमेंट है, वो है, उनके साथ भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं। यहाँ पे BDMA थ्रू एक हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया था और पूरे वागरा के जितने विलेजेस हैं उसकी नीड आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने करवाई है अभी, और वो अवेलेबल है सारे डेटा हमारे पास। और किस गांव में किस तरह की CSR एक्टिविटी करनी है वो भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली है। तो जिसको वो डेटा अगर चाहिए तो वो भी यहाँ से अवेलेबल होगा BDMA से, और वो 10,000 रुपीज़ फीस है आई थिंक, अल्केश भाई, आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो भी डेटा आप लोग को मिल जाएगा। ऐसा ही प्रयास हम लोग एक भरूच के लिए कर रहे हैं। जैसे राजेश जी ने बात किया था कि एक एरिया जो है सीमित नहीं होना चाहिए कंपनी के लिए, तो हम लोग पहले 6 गांव में काम किया करते थे। अभी जस्ट मैंने ज्वाइन किया है, 8 मंथ हुआ है। अभी हम लोग 25 विलेजेस में हमारा जो है एरिया हम लोगों ने बढ़ाया है, और हम लोग 5 क्लस्टर्स में अभी काम कर रहे हैं और कोलैबोरेटिव ही काम कर रहे हैं, NGO के साथ ही काम कर रहे हैं। तो मैं जैसे फिर से ये वर्ड्स यूज करूंगा कि इट इज़ अ डबल इंजन सरकार, तो उसके बिना जो है वो नहीं चलेगा, और वही वैल्यूएबल आउटपुट्स जो है वो उन्हीं के थ्रू हम लोग को मिल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हेमराज सर। आपका एक नया डायमेंशन जो मैंने देखा वो टेक्निकल ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी पर जो एम्फेसिस आप देते हैं उसकी बड़ी ज़रूरत है इस देश को। तो उस दिशा में आप जो स्किल बिल्डिंग कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है, वेरी नाइस। दूसरा ये जो बहुत इम्पोर्टेंट मैंने पाया आपके कामों से है कि आप स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं। इट्स नॉट दैट आई नो एवरीथिंग, but I need to network with the specialist, not just anybody who can come and do something. It's about engaging the specialist. So thank you so much for this, and we need to definitely hear. Hemraj ji, you want to say something? एक मिनट लेना चाहूँगा फिर से। हम लोग कौशल्य वर्धन का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें पैन इंडिया में 32 जितने स्टोर्स है, तो हम लोग फैशन डिज़ाइनर जो है उनको हायर किया है, और उन्हीं के थ्रू हम लोग जो है पूरी अभी जो मतलब कि जो डिज़ाइंस वगैरह हैं वो प्रिपेयर करके फर्स्ट हमारा है कि हम लोग जो अनस्किल्ड वुमन है उनको स्किल्ड करते हैं, जो स्किल्ड है उसको मास्टर ट्रेनिंग में ले जाते हैं। इट इज़ अ सेकंड फेज, और थर्ड फेज जो है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का है। तो उस तरह से हमारा इसमें भी कौशल्य वर्धन में भी हम लोग एक काम कर रहे हैं। बीच में एक फर्स्ट पैनल में एक पॉइंट डिस्कशन हुआ था, मैं यहाँ पे थोड़ा फोकस करना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें कि कंपनीज डुप्लीकेशंस कहीं ना कहीं काम का होता है। डुप्लीकेशंस उसको बोलेंगे ज़रूर, क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग को देना चाहूँगा कि दहेज में मैं रिलायंस में 11 साल काम किया, तो वहाँ पे जब हम लोग स्कूल में जाते हैं तो स्कूल बच्चे बोलते हैं सर सुन नहीं आया आज शू अपना है। तो इस तरह से बच्चे बोलते हैं, तब ऐसा लगता है कि किस तरह से काम चल रहा है, सब लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। पर एक इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा हुआ था, आई थिंक अल्केश नो वेरी वेल, कि हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया था मैडम से, जब अवंतिका मैडम थी, तो हम सारी इंडस्ट्रीज जो दहेज की थी हम लोगों ने मिलके बताया था कि हम लोग एक सारे मिलके जो हमारे 17 गोल्स हैं उसको डिवाइड कर लेते हैं, और उसके आधार पे हम लोग प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, और प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके हम लोग काम करते हैं। उनको बहुत ही अच्छा ये आइडिया लगा था, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, पर अनफॉर्चुनेटली 2.5 मंथ उनका ट्रांसफ़र हो गया और वो हम लोग कर नहीं पाए। तो ये इनिशिएटिव तुषार जी के साथ भी अगर हम लोग डिस्कशन करके अगर कर सकते हैं तो मे बी वो बहुत ही यूजफुल रहेगा कम्युनिटी एज वेल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थैंक यू। Over to you, Rajesh ji. Thank you. I am Rajesh Jani. I am heading HSC for the Bostik India, and also I am SFFIC Process Safety Champion. Bostik is ultimately the part of the Arkema, and मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, already we are very far behind the schedule.
So मैं नहीं only सर कोई बात नहीं 4 से 5 5:30 का था आप आराम मुझे जाना है I have prefix schedule, so I cannot break. नो प्रॉब्लम Okay. So Bostik is a part of the Arkema. Arkema is a France-based multinational company, and we have around 150 manufacturing plants in 52 plus countries in the global. So if we are talking about the SDG 17 goals, and many times I would like to say we are only talking community NGOs outside, but हम घर से स्टार्ट नहीं करते. Even it is applicable to the corporate, applicable to the industries, applicable to us also. So हम क्या करते हैं कि कम्युनिटी में जाके काम किया, सोसाइटी के लिए काम किया, बट व्हाट अबाउट द कॉर्पोरेट्स? आप एनर्जी यूज कर रहे हो, आप स्टैक्स में से धुआं निकाल रहे हो, आप कोल यूज कर रहे हो, आप गैस यूज कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो. सो व्हाट अर्कमा हैज डन, सो जो बोलते हैं ना कि कोई भी अच्छी चीज इट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम माय हाउस, मेरे घर से होनी चाहिए. सो अर्कमा विच इज अवर ग्लोबल पेरेंट कंपनी, फ्रांस बेस्ड मल्टीनेशनल. सो अर्कमा ने एक ग्लोबल टारगेट सेट किया है हमारी इंडस्ट्रीज के लिए कि बाय 2023 हम 30% ऑफ द रिडक्शन करे थे इन द ग्रीन हाउस जो हम करते हैं एमिशन, उसमें 30% ऑफ द रिडक्शन. एनर्जी कंजर्वेशन जो है, एनर्जी कंजप्शन, उसमें भी हमारा टारगेट है. वाटर कंजर्वेशन है, वाटर जो हम यूज करते हैं उसमें वाटर रिडक्शन का भी हमारा टारगेट है. सो दिस इज फर्स्ट कंपनी हैज स्टार्टेड. सेकंड इज वी आर टॉकिंग अबाउट द वुमन एम्पावरमेंट, कि हम महिलाओं को ट्रेनिंग दिया, स्विंग मशीन दिया, ये दिया, वो दिया, वो दिया. बट हाउ मेनी कॉर्पोरेट्स हैव दिस टारगेट कि भाई 30% 50% ऑफ द स्टाफ वुमन होगी, लेडीज होगी? नो एनी कॉर्पोरेट दिस टारगेट. Arkema company has this target by 2023, 30%, 30% of the global leadership position will be the female ladies. Our Asia Pacific HSC leader, she is a lady. Australia side, Australia plant HSC head, she is a lady. Our HR head, posting India, she is a lady. Our Europe HR head, she is a lady. So now Arkema has started everything from by their own. हमने घर से स्टार्ट किया. We are not just talking, we are implementing. Second thing is about the corporate social responsibilities. So what we are doing, so first हमने घर से स्टार्ट कर दिया, जो it is the basic thing, correct, जो हमको घर से स्टार्ट करना है. Second thing, if I am talking about the Bostik India only, in Bostik Arkema globally we are doing many things in all the region, in Europe, America, Asia Pacific, China and everything. So हम Bostik India की बात करें तो हम बिलीव करते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग में. सो ज्यादातर जो लोग फोकस एरिया है हम वहां से थोड़ा हटके काम करते हैं. सो हटके कहाँ काम करते हैं? सो राइट नाउ द सोसाइटीज बेसिक नीड, जो इंडिया में स्पेसिफिकली जो बिगेस्ट इश्यू आता है एज ए पेरेंट्स और इवन इन टर्म्स ऑफ द कॉलेज, इन टर्म्स ऑफ द स्कूल, जो हॉट टॉपिक है आजकल का, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन है, अपने किड्स के साथ, एडोलसेंस बच्चियां है, बच्चे हैं, उनके साथ जो ओपनली डिस्कशन होना चाहिए वो डिस्कशन नहीं हो रहा है. Because of हमारा culture, because of whatever the thing, that's why they are not getting the proper education. Now the mobiles is in our hand, और उनको mobiles में से जो मिलता है they are getting the education, either a bad education, either a good education, we don't know. So what the Bostik India has done, we have a design, specifically design of one project. It is called Abhaya. So Abhaya is a Sanskrit word, is a leader, fearless. So we develop a design a specific project. It's Abhaya. And our site is in the Jhagadia JIDC, but we have started it is from the Ankleshwar. There is a MTM Shah Girls High School, around 500 plus girls they are studying there. So we have designed this project Abhaya, and in the Abhaya we have collaborated with the one very reputed NGO, and actually they help a lot. So this is the main part, is a collaboration. So the NGO help a lot. I have the idea. It was my idea, my dream project. So I discussed with the NGO how we can do. They designed a complete project. So in this project we are covering the menstrual health and hygiene, we are covering sexual harassment, we are covering etiquettes. So basic etiquette is also important, specifically for the adolescent girls. So if they are going for interview, if they are going for some marriage function, if they are going in a bus, in a train, in a public place, so what is the basic etiquette? Second is a self-defense. Third one is a cyber security. So now everyone is using mobile. But are you really secure? Are you really securely using your mobiles? We are not sure. So we have covered these specific topics on the cyber security. Also हमने जो topic cover किया है, specifically we have designed is for the discipline, self discipline. So this
these are the topics, and then we provide the training, multiple workshop by the experts. And also next year we are going to plan a big workshop for the parents in Ankleshwar in Bharuch, where we will invite the adolescent girls parents into the workshop, and we will discuss with the parents. So we are not teaching them on the parenting skill, but we will just discuss about how they have to start a dialogue with their kids. Sexual harassment only girls के साथ नहीं होता है. Sexual harassment is also happening with the boys, adolescent boys, छोटे बच्चे सबके साथ हो रहा है. So this is the one out of box topic we have taken. Second is in education environment, many things we are doing, but in the education only one thing, the sustainability, here the word is. So we are always focused on the sustainability. So we are not very much focused on infrastructure giving, and हम infrastructure school बना दिया निकल के ऐसा नहीं है, स्मार्ट क्लास दे दिया निकल के ऐसा नहीं है. So हम जब भी कोई भी NGO से हम कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो फर्स्ट वी विल डिस्कस ऑन द सस्टेनेबिलिटी, कि ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल है क्या, एंड द सेकंड थिंग इज कैसे एंट्री करना है और कैसे एग्जिट करना है. सो मेनी टाइम आप एंट्री कर लेते हो प्रोजेक्ट में, बट वहां से कब एग्जिट करना है आपको पता नहीं होता है. तो अभिमन्यु की तरफ फिर फंस जाते हो और वो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं जाता है आपका. और आप एग्जिट भी कर लेते हो बट वो प्रोजेक्ट सस्टेन नहीं होगा. तो आप 2 साल के बाद जाओगे तो पता चलेगा अरे तो जो मेहनत किया 2 साल 3 साल वो सब खराब हो गई, अब वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है. सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको एंट्री और एग्जिट एज अ पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट एंड एनजीओ स्पोर्ट. कोलैबोरेशन की बात करें, सो मैंने ये रियल सिचुएशन फेस किया है. सो हम एक स्कूल में प्रोग्राम कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, 2 साल से ऑलरेडी चल रहा है. तो वहाँ पे अच्छी सी रेप्यूटेड कंपनी ने एक एनजीओ हायर किया और एनजीओ को बोला कि हमको 80 स्कूल में एक एजुकेटर देना है. उनका टारगेट था सिर्फ एजुकेशन देना है 80 स्कूल में, कौन से स्कूल में देना है वो एनजीओ हैज टू डिसाइड. तो हम जो स्कूल में प्रोग्राम कर रहे थे वहाँ पे वो एनजीओ ने एक एजुकेटर लगा दिया. अब हमने हमारे एनजीओ ने और हमने इंडस्ट्रीज को अप्रोच किया, भाई हम ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप क्यों डिफ्यूट कर रहे हो. वहाँ पे हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी रनिंग है, हम 2 साल से कर रहे हैं, अब कम से कम असेसमेंट तो करो कि ऑलरेडी कोई प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा है. इंडस्ट्रीज नॉट गिव द प्रॉपर आंसर. हमने एनजीओ को भी अप्रोच किया, बट एनजीओ ऑल्सो हमको तो 80 एजुकेटर देने हैं, कॉर्पोरेट ने फंड किया है, हमने तो लगा दिया, अब आपका चलाओ हम हमारा चलाते हैं. दे सिंपली गिव दिस आंसर कि आप आपका चलाओ मैं मेरा चलाता हूँ, क्या इश्यू है, दोनों का चलता है. सो दिस इज नॉट अ गुड, दिस इज नॉट अ राइट वे. सो कॉर्पोरेट फंडिंग कर रही है, आई थिंक इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कॉर्पोरेट. सो आप कॉर्पोरेट फंडिंग कर रहे हैं, एनजीओ फंडिंग ले रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि देने के लिए दे दिया, करने के लिए कर दिया फिर खत्म. सो दिस शुड नॉट बी लाइक दैट. तो इट शुड बी सस्टेनेबल, और कहाँ पे भी ऐसा रिवर्क नहीं होना चाहिए इसमें. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, दोनों साइड से होना चाहिए. कॉर्पोरेट की साइड से कि भाई देने के लिए पैसा नहीं देना है, हमको राइट वे में पैसा देना है. एनजीओ के लिए कि भाई मेरे प्रोफाइल में आ जाएगा ये कंपनी का मैं काम कर रहा हूँ, इतनी स्कूल में कर रहा हूँ. सो प्रोफाइल में नाम डालने के लिए काम नहीं करना है. वी हैव टू वर्क फॉर द सोसाइटी, वी हैव टू वर्क फॉर सम आउटकम्स, we should not work for the results. So this is the most important. Thank you. Thank you so much राजेश जी. उम्दा बात ये लगी कि आप तय करके चलते हो कि शॉर्ट टर्म में हमें क्या अचीव करना है, लॉन्ग टर्म में हमें अचीव क्या करना है, तो तभी एक कंसिस्टेंसी और सस्टेनेबिलिटी बिल्टअप होती है सिस्टम में. दूसरी बात काबिल तारीफ ये है कि जेंडर इक्विटी और डाइवर्सिटी के इश्यूज को आप बिल्कुल फोकस तरीके से एड्रेस कर रहे हैं, नॉट ओनली एट द नेशनल लेवल बट द इंटरनेशनल लेवल, विच इज़ वंडरफुल. और आपका अभया प्रोजेक्ट तो सही में बहुत यूनिक है. एंड आई वुड सजेस्ट दैट इफ यू कैन ऑल्सो एंगेज नेक्स्ट ईयर, हमारे बच्चे भी थर्ड सेमेस्टर में, जो फर्स्ट सेमेस्टर में वो थर्ड सेमेस्टर में आ जाएंगे. तो जिस तरह से ये बच्चे अभी ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वैसे आपके अभया प्रोजेक्ट में हमारे बच्चे भी शायद इन्वॉल्व होके खुद भी सीखते हैं और इंस्ट्रूमेंटल बनेंगे दूसरों को सिखाने में और दूर तक बात ले जाने में. तो कहीं ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा. I will just because it is in my power of attorney. So बीएड कॉलेज में ही हमारा अभया प्रोजेक्ट चालू हो रहा है. वेरी गुड. उसमें जो बीएड कॉलेज जी है जी डायट, जी, तो वहाँ पे अभया प्रोजेक्ट चालू हो रहा है. So I will give you the guarantee I will involve your students. so sweet of you, thank you so much from on behalf of all of us. और ये एग्जिट की बात मुझे बहुत पसंद आई, करते जाओ, अभी अंदर घुस गए तो यू नो गांव वाले क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, करते जाओ. नो, दैट एग्जिट, amazing. Thank you so much once again Rajesh ji, and we'll come back to finally conclude on
futuristic action plans. We need to conclude on in this panel, and I will give that botheration to Alkesh Bhai at the end of the panel. How to conclude and draw out a futuristic plan. But now, for the time being, Alkesh Bhai, your side from Jubilant. Thank you, ma'am. So, I am myself Alkesh Rana. I am working with Jubilant as a Associate Director PR. I have recently joined Jubilant, so what activities is to be done done by Jubilant. I am not fully aware, so I'll call my colleague Saurav. He will brief the activities of CSR which Jubilant Bharatiya Foundation is doing. But Hemraj Bhai and Rajesh Bhai, sorry why I have called him, because it is just 1 month I have joined this company and 15 days I was out of factory. So I am not aware exactly what Jubilant are doing, because I am handling government liaising also. So excuse me. So good evening everyone once again. I am Saurav and I am looking after the CSR department of the company. And Jubilant Bharatiya Foundation was established around 2007 and is a not-for-profit organization and conceptualization and implementing CSR initiative of the group. So we are working on 4 different pillars, that is health, education, livelihood and rural development. And one more flagship program is our social entrepreneurship of the year, which is in association with World Economic Forum and SOF Foundation. So health में जैसे कि starting with the health, we are जैसे कि mobile dispensary units are flagship for everyone, every CSR over here. So we also have that. But even during the period of time, हम लोग ये रियलाइज कर रहे थे कि ये आपका डुप्लीकेसी तो हर जगह एक सेम गांव को टारगेट कर रहे हैं हम लोग जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं. तो इनिशियली उसको थोड़ा सा कम करते हुए हम लोग ने एक टेलीमेडिसिन सर्विसेज भी स्टार्ट किया, लेकिन वो भी आज अपना मोबाइल डिस्पेंसरी सर्विसेज भी इन कंटिन्यूएशन है. उसके साथ में हम लोग ने टेलीमेडिसिन सर्विसेज भी स्टार्ट किया, जिसको हम लोग और ज़्यादा लेवल तक हम लोग एक्सपैंड कर सकते थे और भी रीच आउट अपना बढ़ा सकते थे. सेकेंडली वी हैव एस्टैब्लिश अ JBF मेडिकल सेंटर, जहाँ पे हम लोग का डेली OPDs होती हैं, डे केयर सर्विसेज होता है जहाँ पे आप इंजेक्शन आपका जो भी लेना है बॉटल से सब जो चढ़ाना होता है वो फैसिलिटीज अवेलेबल है. और पूरा आपका लेबोरेटरी भी उसमें स्टैब्लिश है और बहुत ही मिनिमम फीस में 20 रुपीज़ भी टेक. और उसमें आपको एक MBBS डॉक्टर का कंसल्टेंसी मिल रहा है, आपको डे केयर के सर्विसेज मिल रहा है, आपको कुछ भी इंजेक्शन लेना है, आपको कुछ भी टेस्ट कराना, ब्लड ग्रुप कराना है, कुछ भी ऐसा है तो उसमें भी पूरा सर्विसेज कवर्ड होते हैं. तो हमारा वहाँ पे JBF मेडिकल सेंटर भी है. Thirdly, we are also working on NTB project. So we are also in association with the union and USAID. We are also working to eradicate tuberculosis, and we are also supporting for nutrition support. We are also working on malnutrition project, and we are also supporting nutrition support to over 200 malnourished children in Waghra Taluka and Bharuch Taluka. Again, we are organizing blood donation camps, HIV awareness camps, multi-specialist health camps. So this is all about our health initiatives. Coming to our livelihood initiative, in livelihood we are having 2 vocational training centers in association with Center for Entrepreneurship Development, that is a government of Gujarat body who are running the VTP centers. In VTP centers we are having different technical courses like electrical, supply chain and logistic management, fitter. Then also the flagship type programs like tailoring, beautician, computer basics type programs. And we are also facilitating them, giving them certification or providing them a placement assistant also. लेकिन ये सब टेक्निकल कोर्सेज तो थे हमारे साथ, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को एक महसूस हुआ कि हम लोग को बिजनेस लिंक CSR भी करना है. तो हम लोग ऑलरेडी SHG के साथ भी हम लोग ने काम किया हुआ था इनिशियली बहुत. तो हमारे एक कंपनी में प्रोडक्ट है जो हर्बल क्लोरिंग करके है, जिसका इंग्रेडिएंट आपका नीम पत्ता, नीम पाउडर होता है. तो नीम पाउडर बेसिकली आपका नीम पत्ते से ही आएगा. तो वो SHG ग्रुप को पूरा हम लोग ने पूरा एक पल्वराइजेशन यूनिट सेटअप करके दिया. पहले क्या था, प्राइवेट वेंडर्स आते थे, अपना पिच करते थे, जो भी कोटेशन होता था वो करके वो अपने कंपनी के साथ बिजनेस में थे. लेकिन अब वो लोकल महिलाएं पूरा ये ओवरऑल बिजनेस को संभाल रही है. गाँव की महिलाएं हैं और उन लोग ने पूरा अपना पल्वराइजेशन यूनिट सेटअप किया. हम लोग फैसिलिटेट किए पूरे प्रोसेस में, और आज टन्स में वो लोग रॉ मटेरियल हमारे कंपनी को सप्लाई कर रही है. सिमिलरली हम फार्मर्स के साथ हम लोग भी काम करते हैं, जहाँ पे हम लोग वाड़ी प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व हैं.
जैसे कि जुबलेंट फूड वर्क्स है, जुबलेंट फूड वर्क्स में मीन्स वी हैव डोमिनोज, तो डोमिनोज में जो रिक्वायरमेंट होता है टोमेटोज की, कैप्सिकम की, वो हम लोग लोकली फार्मर्स के साथ हम लोग टाई अप करके हम लोग वहीं से प्रोक्योर करा रहे हैं, ताकि उन लोग को एक पूरा कम्पिटिटिव प्राइस में उन लोग को ईयर लॉन्ग हम लोग पूरा सर्विसेज दे रहे हैं, और उन लोग के घर से वो टोमेटोज का सब कुछ प्रोडक्ट्स को लेके हम लोग डिलीवर भी करा रहे हैं कंपनी तक। तो ये हम लोग ने बिजनेस लिंकेज CSR हम लोगों ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया यहाँ पे। अगेन टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन पार्ट में हम लोग का भी एक फ्लैगशिप मुस्कान प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हम लोग 15 प्राइमरी स्कूल के साथ वागरा तालुका में 5 प्राइमरी स्कूल इन भरूच तालुका, देन ऑल्सो इन नेत्रन तालुका, वहाँ पे हम लोग ने अपना मुस्कान प्रोजेक्ट चलाया, डिजिटलाइजेशन प्रोजेक्ट भी हम लोग ने वहाँ पे किया। लेकिन उसके बाद एक कहीं ना कहीं हम लोग को देखा लगा कि एक चेंज लाना जरूरी है वहाँ भी, क्योंकि वहाँ भी कहीं ना कहीं सेम डुप्लीकेशन टाइप का प्रोजेक्ट थे। तो हम लोग इनिशियली फिर हम लोग स्टार्ट कर दिए अपना वैल्यू बेस्ड लर्निंग के ऊपर, जहाँ पे हम लोग टीचर्स को भी ट्रेन करने लगे कि आप एक्टिविटी के थ्रू, वैल्यूज के थ्रू, 21st लाइफ सेंचुरी स्किल्स के थ्रू कैसे खुद को भी ट्रेन करें और अपने बच्चों में भी वो एक वैल्यू जनरेशन का सिस्टम आप लोग डेवलप करें। साथ ही में उन लोग के साथ अलग एक्टिविटीज भी हम लोग ईयर लॉन्ग पूरा मंथ वाइज एक्टिविटीज हम लोग प्लान करते रहते हैं। इसके साथ हम लोग ने फिर एक मोबाइल साइंस लैब का भी कंसेप्ट लाया, जो हर स्कूल्स में जाके आपका साइंस के ऊपर उन लोग को एजुकेशन प्रोवाइड करता है, और स्कूल्स में हम लोग ने साइंस लैब सेटअप करना भी स्टार्ट किया। रूरल डेवलपमेंट भी ठीक है, हम लोग ऑब्वियसली CSR में है, तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हम लोग को बोला जाता है, वहाँ पे भी हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कुछ चेक डैम बनाना हुआ, तो वो सिर्फ पार्ट एंड प्रोसेस ऑफ द है, हम लोग का इनिशिएटिव में हुई है। थैंक यू। थैंक यू सौरभ। मुझे इतनी सारी बातें पता नहीं थी, मैंने 2-3 साइट विजिट किया है, अभी तो इसने बोला उतना 1 महीने में पॉसिबल नहीं था। That's why I have given Saurabh to say something on it. Amazing, amazing. What is remarkable is the entrepreneurship development. I mean, that is the need of the hour. If we have to really make a difference to the country in terms of skilling and job creations, we need to focus on entrepreneurship. So that is one dimension, I believe, which should gain focus when we are drawing out our futuristic action plans for sustainable community development. Business linkage CSR was a novel idea. And yes, mobile science vans, because, we know the story of our ex-president, Abdul Kalam ji also, how he as a rural youth developed, liking for science and space. Now that is what the students' talent is across the country, across the globe. It's for us to identify and work on them. So science lab to the rural areas, I think it's a novel idea. So thank you once again, Alkesh Bhai and Saurabh Bhai. Thank you so much. Over to you, Jigisha Ben from Seva Rural. Sorry, Gram Vikas Trust. Seva Rural, no, from Gram Vikas Trust. Sorry, doctor. Good evening. Myself Jigisha Jhala. I am from Gram Vikas Trust. Gram Vikas Trust is working in Bharuch district since 2001. Our major core area is health, education, livelihood, disaster management and relief, wash and child protection. जैसे यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई है, यहाँ पे बहुत सारे CSR प्रोग्राम्स हैं, तो जो हम कोलैबोरेशन और सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो मुझे ये बात की खुशी है कि हमने यहाँ पे बहुत सारे CSR इंडस्ट्रीज से जो है उनके साथ काफ़ी प्रोग्राम्स किया है। जैसे कि हमारा एक विद्यासाथी प्रोग्राम है एजुकेशंस में, और विद्यासाथी प्रोग्राम्स हम अभी आरती इंडस्ट्रीज के साथ 2 साल से कर रहे हैं। उसमें जो हमारे रूरल एरिया में जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, ड्रॉप आउट्स भी होते हैं उसमें, तो हमारा एक वहाँ पे टीचर्स होते हैं हम जो अपॉइंट करते हैं, और हमने उनका नाम दिया गया है, वो बच्चे को हम लोग प्रिय बालक बोलते हैं। वो निग्लेक्टेड होते हैं क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं, कहीं ना कहीं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो हर बार उसको डांट ही मिलता है, पर हमारे लिए वो प्रिय है, ताकि उसका जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उस पर भी हमें काम करना है, तो बच्चे को आने के लिए एक प्रोत्साहन मिलना ज़रूरी है। दूसरा चीज़ है कि वहाँ पे जो हमारा जो क्लासेस चलता है वो हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में लर्निंग है, उनका राइटिंग है, और काउंटिंग का जो पोर्शन है उसका एक एनालिसिस करते हैं, उसमें से उसका एक ग्रुप बनाते हैं कि जो उनका
पुअर है उसमें से हम वो ग्रुप में उसको बैठा के उनको और एजुकेट करते हैं, और वो हमारा एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग रहता है, नहीं वो रेगुलर स्कूल्स में ही होता है, वहीं क्लास प्रोवाइड करते हैं, पर हमारे जीवीटी के थ्रू को अभी वो प्रोग्राम हमारा आरटी इंडस्ट्रीज के साथ है, तो वो पूरा प्रोग्राम हम दोनों कोलैबोरेटिव ऐसे चला रहे हैं और उसका काफ़ी सारा रिजल्ट भी है। और स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स को जब पता चलता है ना, तो वो लोग हमारे पास डिमांड करते हैं कि ऐसा प्रोग्राम हमारे स्कूल्स में भी होना चाहिए, ताकि वो सपोर्टिव भी है और बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी हमारे चलते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, इकोनॉमिकली उनका बैकग्राउंड ऐसा है कि वो कहीं ड्रॉप आउट हो सकते हैं, तो हम उनको सपोर्ट भी करते हैं। दूसरा है हमारा कि हम लोग स्कॉलरशिप के साथ साथ उनको एजुकेशन में हमारा अभी जो टेक्नोलॉजी की हम बहुत सारी बात कर रहे हैं, तो भारत हेडटेक इनिशिएटिव के साथ हमने 2 साल से टाइप किया है। तो हमारा वो कोविड के टाइम बायजूस भी था सत्वा के साथ, तो उसमें हमने हमारे जो घर के बच्चे हैं ना, उन्होंने तो काफ़ी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के साथ कोविड में किया था, पर इन बच्चों के लिए जो हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट्स है और उनको लगा कि नहीं, हमें ये बच्चों के साथ भी कुछ करना चाहिए। तो अभी स्मार्टफोन घर में किसी न किसी के पास तो है, तो हमने आज भी वो प्रोग्राम्स हमारा कंटिन्यू है और उसमें हमने 10,000 से ज़्यादा बच्चे को आज हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं। उसमें हमारे टीचर्स अपॉइंट किया है जिसमें जीवीटी उसको पे कर रहे हैं, और वो टीचर्स हर एक के घर जाते हैं, वो सुबह के टाइम पे जाते हैं, शाम के टाइम पे जाते हैं, ताकि मोबाइल जब अवेलेबल होता है उस टाइम पे उनके साथ काम करना होता है। बच्चों को वो लेवल का एग्जाम्स भी होता है, वो भी हम लोग उसमें ऑनलाइन करवाते हैं। तो अभी टेक्नोलॉजी के साथ भी हम लोग ये काम कर रहे हैं। दूसरा हमारा एक कंपोनेंट है हेल्थ एंड हाइजीन पे हम काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। मैडम ने हमारे वो इनॉग्रल फंक्शंस में आए थे। ग्राम विकास ट्रस्ट एक सैनिटरी पैड्स जो नेपकिन्स है उनका प्रोडक्शन यूनिट चला रहे हैं। वो पूरा एंटायर प्रोग्राम बाय द वीमेन फॉर द वीमेन प्रोग्राम से हमारा, और उसमें जहाँ तक आप देखो तो वो सैनिटरी पैड्स है जो मल्टीनेशनल कंपनी आज विस्पर का जो है उसके इक्विवेलेंट क्वालिटीज़ भी है, हमने सर्टिफाइड्स भी है, उसका सर्टिफिकेट्स भी हमारे पास है। दूसरा ये जो सैनिटरी पैड्स है कॉटन बेस्ड फ्लॉपी नहीं है, हमारा जेल बेस्ड है, और पूरा वो हाइजीन भी मेंटेन होता है क्योंकि वो फुल्ली ऑटो भी है उसमें पैकिंग, और उनमें 11 महिलाएं हैं कि जो पूरा काम वो लोग हैंडल कर रहे हैं। ये प्रोग्राम पूरा वीमेंस के थ्रू चल रहा है। जैसे फील्ड ऑफिसर है वो सारे फीमेल्स है, और हम लोग सिंपली सैनिटरी नैपकिन लोगों को दे नहीं रहे हैं। हमारा एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट अवेयरनेस मॉड्यूल्स है, हम लोगों को अवेयरनेस एजुकेट करते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है, यूज़ कैसे करना है, वो सारी चीज़ भी उसमें हम लोग अवेयर कर रहे हैं। तो एक हमारा है वो सैनिटरी नैपकिन प्रोडक्शन यूनिट में पूरा। दूसरा है कि हमारा जो फील्ड ऑफिसर है, जैसे हम सेल्स वीमेंस को अपॉइंट करते हैं, उसको हमने संगीनी नाम दिया है, उसको कुछ प्रॉफिट भी इंसेंटिव मिलता है, तो वो इंसेंटिव के थ्रू उसका भी एक इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी शुरू होता है, और लोगों को वो एजुकेट करके पूरा सप्लाई चेन कंटिन्यू रहना ज़रूरी है। आज हम लोग गए 2 दिन के बाद 10 दिन के बाद नहीं जाते, तो उनको वापस उनका जब नीड होता है तो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो हमारा एक प्रोग्राम्स भी चल रहा है। जो चाइल्ड प्रोटेक्शन वो सर ने जो बताया अभी, जानी सर ने, तो हमारा जो भरूच डिस्ट्रिक्ट है उसमें 1098 वो भरूच डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड लाइन है, पूरा चाइल्ड हेल्पलाइन है, वो 365 डेज 24 आवर्स चलता है ये चाइल्ड हेल्पलाइन। तो हम लोग चाइल्ड राइट्स पे भी काफ़ी सारी काम कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा प्रोग्राम है, हम लोग डिज़ास्टर एंड रिलीफ में भी कोविड टाइम में भी काफ़ी जीवीटी ने काम किया है। जैसे हमारे वोकेशनल क्लासेस होते हैं उनसे ही हमने मास्क और वो बनवाए थे ताकि उनको भी एक इनकम मिले और उनका भी हम लोग यूटिलाइज करें। लाइवलीहुड प्रोग्राम्स में भी हम लोगों ने काम किया, जैसे यहाँ पे यूपीएल है तो उनके साथ भी हमने लाइवलीहुड प्रोग्राम्स में काम किया है। तो लाइवलीहुड प्रोग्राम्स में अभी स्विंग, ब्यूटी पार्लर है, स्पाइस मेकिंग, चॉकलेट, कैंडल्स मेकिंग के क्लासेस भी चलते हैं। पर जो जुबेलियन का है कि ईडीपी हमने भी सीईडी के साथ उनका टाई अप किया है, और सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के थ्रू
जब हमारा ये पूरा 3 मंथ्स का कोर्स खत्म होता है उसके बाद 12 दिन का जो ट्रेनिंग है वो भी हम देते हैं और सर्टिफिकेट्स उनको मिलता है। तो अभी बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, स्किल तो हमने डेवलप किया है पर जो बिजनेस रिलेवेंट अभी उसको कैसे आगे लेके जाना है वो भी हम लोग उसमें पूरा फोकस कर रहे हैं। बाकी तो हमारा हमने कोलार के साथ और DCM श्रीराम के साथ वॉश पे भी काम किया है, तो हम यही एरिया में काफ़ी हमारा काम है। पर जो हम सस्टेनेबिलिटी और कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं तो मुझे एक शेयर करना है कि हमारे जो फाउंडर ट्रस्टी और प्रेसिडेंट है रमेश कासोंद्रा सर, उनका ये एक बहुत स्ट्रांगली मानना है, तो जीवीटी एजुकेशन पे काफ़ी काम कर रही है। कोई भी बच्चा होता है जितना हम एजुकेट करते हैं, जितना हम ट्रेनिंग देते हैं ना, तो वो आगे जाके वो सस्टेनेबल सोसाइटी बन पाएगी। वरना क्या होता है जब हम एजुकेशन पे ही इतना फोकस नहीं करते तो बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारा जो क्राइम रेशियो भी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, तो हमारी जो साइकिल है वो कभी ब्रेक नहीं होगी, वो चलती ही रहेगी। तो एजुकेट करेंगे उनको, कहीं आगे जाके वो कहीं ना कहीं कोई काम में जुड़ेंगे तो हमारा पूरा हम कुछ कहीं ब्रेक कर सकते हैं। तो वो एक हम लोग का मेजर फोकस एरिया है कि हम काफ़ी एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। दूसरा जो मैं बात कहना चाहती हूँ, वो जो मैडम ने बताया था स्टार्टिंग में कि CSR के पास काफ़ी फंड्स है और वो मैं भी मानती हूँ। वो मैं सोच रही थी कि मुझे भी शेयर करना था पर उन्होंने शेयर किया था। पर जैसे हर एक का खुद का एक कैपेसिटी होता है और एक स्ट्रेंथ होती है, तो CSR में फंड्स काफ़ी है, उनका लीडरशिप है, उनका मैनेजमेंट, जो सारी स्किल्स है उनके पास है। NGOs है, उनके रूरल एरिया तक काफ़ी मोबिलाइज वो अच्छी तरह से कर सकते हैं, उनका रेपो बिल्डिंग वहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा चीज़ है कि वो इतने सालों से वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो नीड क्या है लोगों की, उनके प्रॉब्लम्स है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम साथ में रह के जो कोलैबोरेटिव काम करते हैं तब जाके हमको स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। और मैं एक थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने GVT ज्वाइन किए सिर्फ जनवरी में किया है, पर अदरवाइज मैंने 20 इयर्स गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है। पर फिर भी जो मैं यहाँ पे मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो मेरा एक्सपीरियंस है। दो तरीके से CSR में हमने बातचीत किया है कि एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में शायद हम अचीव नहीं कर पाते, उसके लिए लॉन्ग टर्म विजन होना ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि वो विजिबली बहुत अच्छा दिखता है, जैसे कुछ भी स्कूल्स में डेवलपमेंट किया, क्लासरूम बनना है, पर एक बच्चे को जब एजुकेट करके उसका फ्यूचर बनना है वो लॉन्ग टर्म गोल हो जाता है। तो दो तरीके से काम होता है, अपना अपना खुद का एक ऑब्जेक्टिव भी रहता है और मिशन रहेगा, पर बहुत हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तब जाके हमें कुछ सस्टेनेबल सोसाइटी की बात कर पाएंगे, हम बना पाएंगे। क्योंकि जब ये पूरा है, पहले चैरिटी था, अभी कोलैबोरेटिव और सस्टेनेबल का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो थीम तो वही चल रहा है, सिर्फ हम थोड़ा आइडियाज और उसके साथ आगे पीछे उधर उधर चल रहे हैं। तो वो एक चीज़ मुझे बतानी थी। दूसरा जो मुझे पता नहीं पर मैं ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि जब CSR में फंड्स बहुत होते हैं तो लोगों को, एक मेरा एक्सपीरियंस है कि हम जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट पे सैनिटरी पैड्स को हम लोग MHM करके फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, खरीदने के लिए बोलते हैं। तो जब लोगों को फ्री में पूरा मिल के जाता है तो पब्लिक पार्टनरशिप नहीं होता है ना, तो उसका वैल्यू भी नहीं होता है। तो वो ऐसे शायद ले भी लिया, कोई यूज़ भी किया, नहीं भी किया, पर मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ टोकन होना ज़रूरी है। जैसे सैनिटरी पैड्स हम लोग भी देते हैं ना, तो लोग बोलते हैं नहीं ये कंपनी तो बहुत फ्री में देके जाते हैं, तो सस्टेनेबल नहीं हो पाते हैं। उसके लिए वो मेरा एक स्ट्रॉन्ग मानना है कि हमें जब सस्टेनेबल करना है तो उसका कुछ ना कुछ, भले 5 रुपये 10 रुपये आप टोकन में लीजिए, पर वो तब जाके सस्टेन हो। अदरवाइज उसको फ्री में लेने की जो मेंटालिटी बनेगी ना, तो वो कभी हम ये सोसाइटी को सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो एक है हमारा एक एग्जांपल मैं शेयर करना चाहती हूँ, फिर मेरा एक लास्ट है कि IKEA का नाम सुना होगा, वो फर्नीचर्स बहुत बनाते हैं, राइट? पर ISR के और NGO के थ्रू है, इसलिए ये एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ कि वहाँ जो फर्नीचर्स बनता है वो चाइल्ड फ्रेंडली रहता है, कि कॉर्नर्स नहीं होते, राउंड शेप में होता है।
दूसरी चीज़ है कि जो कॉटन प्रोडक्शन होता है उसमें जो कॉटन यूज़ होता है उसमें चाइल्ड लेबर का कहीं ना कहीं इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि उस पे तो है जो भी मैन्युफैक्चरिंग उनका जो बिजनेस है, पर उनके साथ ये जो विजन है तो ऐसा भी हर कोई साथ में जुड़ के कर सकता है। तो वो हम जैसे चाइल्ड लेबर फ्री कर सकते हैं, चाइल्ड को एजुकेट कर सकते हैं, उनका हेल्थ एंड हाइजीन पे फोकस कर सकते हैं। तो जो हमारा जो कोर फंक्शंस है, हमारे जो इश्यूज है उसको काफ़ी अच्छी तरह से हम सॉल्व भी कर सकते हैं। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बारीकी से आप हर चीज को देखते हैं, काबिल तारीफ, क्या बात है। सबसे अच्छा मुझे जो लगा कि आप सॉफ्टवेयर इश्यूज पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, बिकॉज सॉफ्टवेयर इश्यूज को अगर हमने एड्रेस कर दिया तो बाकी सब तो अपने आप होना ही है। तो रूट कॉज पे जाना सॉफ्टवेयर इश्यूज से और एक अपील बिल्ड करना, तो जो मेरे में अगर काबिलियत है और फिर मैं जाके किसी को बोलती हूँ तो मेरी बात सुनी जाएगी। अगर मुझ में ही कुछ नहीं है और मैं जाके कितना भी कुछ बोलूँ उसका असर नहीं होना। तो एक अपील जनरेट करने के लिए भी एक सही व्यक्ति चाहिए जो सही व्यक्ति के पास जाके कुछ बात करे। तो वो अपील की जो आपने बात की बहुत अच्छी की। और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स लाने के लिए शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, फाउंडेशन क्या है, ये सारी बातें आपने बहुत अच्छी तरह से पेश की। थैंक यू सो मच जिगीशा मैडम, थैंक यू वंस अगेन। ओवर टू राकेश भट्ट जी फ्रॉम सेवा यज्ञ समिति। उपस्थित सर्व सज्जनों, अभी मैडम ने बात किया था कि डेवलप नेशन की हम एक सोच लानी होगी। डेवलप नेशन के लिए डेवलप सोसाइटी चाहिए, डेवलप सोसाइटी के लिए एक डेवलप फैमिली चाहिए, और डेवलप फैमिली के लिए एक जो उसका ब्रेड अर्निंग पर्सन है वो डेवलप होना चाहिए, सस्टेनेबल वो फैमिली होना चाहिए, तभी ये पूरा अपना नेशन है वो डेवलप और सस्टेनेबल होगा। अभी हमने 25 साल से इस फील्ड में है तो हमने देखा है कि कई लोगों को हमने रूरल अर्बन स्लम में देखा है कि भाई आप ये क्या गिन रहे हो कि भाई ये मुझे इसको इतना इंटरेस्ट रेट देना है, वो क्यों देना है? तो कि मैंने इससे 25,000 लिए थे, 20,000 लिए थे, 10,000 लिए थे, क्यों लिए थे? तो भाई ये हमको स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई थी, इसलिए हमको ये करना पड़ा और उससे हमको हायर रेट इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेना पड़ा। तो हमने ऐसा देखा कि भाई ये तो 3 और 4% पर डे का इंटरेस्ट रेट सब साहूकार लोग ले रहे हैं और इसमें सरकार भी अभी कुछ नहीं कर सकी है, कोई एक लेवल पर तो कुछ नहीं कर सकी है सरकार। तो हमने ऐसा सोच के ये हेल्थ सेक्टर में काम करना शुरू किया। हेल्थ सेक्टर में मैंने पहले ही दिन देखा था कि एक कोई डीबी फट गई थी, इसमें 3 बम हुए। एक बम केस स्टर्लिंग में गया, दूसरा बम केस प्राइवेट प्रैक्टिस में गया और तीसरा बम केस सरकारी अस्पताल में गया। ऐसे ही मेरे पास मैंने कहीं केसेस देखे हैं कि जिनके पास फंड्स है, जिनके पास केयरटेकर है, रिसोर्सेस है, वो लोग अच्छे से अपना इलाज करवा रहे हैं। जिसके पास इस तीनों में से कुछ नहीं है उन लोगों को सरकारी अस्पताल में जाना पड़ता है। अब सरकारी अस्पताल में क्या है, एक अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है तो डॉक्टर नहीं है, ये दोनों है तो मशीनरी नहीं है। ये सारी तकलीफें हमने 25 साल में देखी है। लास्ट में कुछ नहीं है तो लास्ट में मौत है सरकारी में। अभी तक मैडम जस्ट मुझे लेट हुआ आने में, सर की बात से मैं सहमत हूँ। उन्हीं के वहाँ 4 दिन से बीमार था और रोड एक्सीडेंट में था, उसका कोई नहीं था, एक्सपायर हो गया। 6 दिन तक डेड बॉडी रखी रही, अंतिम संस्कार कोई करना नहीं आया और वो अंतिम संस्कार हम करते हैं। जस्ट वो करके आने मुझे यहाँ देरी हुई, अभी वो करके सीधे हम लोग यहाँ पे आए। 3 महीने में अभी हमने 8 डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया जिसका कोई नहीं था। धर्मेश सोलंकी जी सभी करते थे, लेकिन वो अकेले कितना करेंगे, तो हमने ये जवाबदारी वापस अंकलेश्वर में ले ली है। सर की बात एकदम सही है। अभी एक वीडियो दिखाया था कि एक आदमी अपनी वाइफ का डेड बॉडी लेके जा रहा था, ऐसा कुछ वीडियो आया था क्लिप में। ऐसा तो भरूच में रोज होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारी संस्था उधर सिविल अस्पताल में है और ऐसा नहीं होने देती है।
क्योंकि हमारे पास 8 से 9 एम्बुलेंस है, हम रोज फ्री में देते हैं एम्बुलेंस, किसी के पास से भी पैसा नहीं लेंगे। 108 नहीं है तो वहां हमारी एम्बुलेंस है। हम सालाना 20 लाख का तो डीजल का हमारा खर्चा हो जाता है। तो ये काम हमने करना इससे क्या होता है कि जो भी घर का कोई भी आदमी है उनका मानो कि ब्रेड अर्निंग पर्सन है, कुछ बच्चा है, किसी का भी पैसा बचेगा तो अल्टीमेटली तो वो अपने अपलिफ्टमेंट में ही खर्च करेगा, या एजुकेशन में लगेगा, या उसके सोशल ऑब्लिगेशन में लगेगा। तो इसलिए ये हम काम कर रहे हैं। हमने सिविल अस्पताल गवर्नमेंट को अपना बेस बनाया है, क्योंकि सिविल अस्पताल है ना, वो इटसेल्फ इज ए कैंप, वो रोज का कैंप ही चल रहा है, रोज का ये कैंप चल रहा है। और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है। हाँ, उसमें जो नहीं है, मानो के एनेस्थेटिक नहीं है तो वो हम दिलाते हैं, मानो कि उसमें कोई इंजेक्शन नहीं है वो हम लाके देते हैं, मानो कि दवाई नहीं है तो वो हम लाके देते हैं। इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाहता हूँ कि डायर इमरजेंसी है, कोई आदमी मर जाए उसके पहला मानो के सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी आइटम्स नहीं है वो हम लाके टाइम पे दे देते हैं, इसलिए कि उनका जीवन बच जाए। ऐसा कुछ कार्य हमारा ये 25 साल से चल रहा है। 18,000 मरीज हमारे पास सालाना आते हैं। ताव खांसी सर्दी के अलावा के मरीज की बात करता हूँ, जहाँ सर्जिकली सब आते हैं, उनमें से 12-15 हजार तक पहुंच पाते हैं। और अभी मैंने बोला कि एनजीओ में 1997 से 2015-16 तक 2 काम करने पड़ते थे, एक तो फिजिकल वर्क और सेकंड फंड लाने का। अभी सीएसआर आया है तो हमारा जो फंड आता है तो हमारा ये काम तो थोड़ा हो गया है। तो फिर एनजीओ का अभी क्या बनता है कि वो जो हमारा 1-2 घंटा जो बचा फंड रेजिंग का, वो हमें उस काम में लगाना चाहिए, जो हम पर्टिकुलर फील्ड में करते थे वो लगाते ही होंगे। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कहीं नहीं लगाता होगा। अच्छा, मैं क्या दूसरा क्या बोलता चाहता हूँ कि इन डेप्थ थोड़ा सर्वे करके कंपनी को हमें देना चाहिए कि भाई यहाँ ये जरूरत है, यहाँ ये जरूरत है। तो वो कंपनी, वो साहब ने भी बोला ना कि वो लास्ट के लार्ज गांव तक तो कंपनी नहीं जा सकती, लेकिन एनजीओ जा सकती है, और एनजीओ रेकमेंड करती है तो कोई कंपनी जनरली मना नहीं करती है। और सेकंड थिंग, जो एनजीओ में मानो कि मैं कोई जगह पर जाता हूँ और ऐसा कोई काम है कि जो मेरे स्कोप में नहीं आता है, लेकिन मानो कि वो जो सार्थक के स्कोप में आता है या फिर कलरव में स्कोप में आता है, तो मुझे उन लोगों से शेयर करना चाहिए कि आप ये काम कर लो, बराबर। तो ऐसे ऐसे हम करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलके काम करने का है। तो ऐसा नहीं है कि भाई रोज मीटिंग करके ही काम करो, फोन पे बोल देने का है भाई ये काम करने का है, ये एक ऐसा केस है आप देख लेना, ये एक ऐसा कोई पक्षी इधर गिरा है तो हम उनको बोल देंगे। तो ऐसा करके ये अच्छे से अच्छा काम हम कर सकते हैं। और एक बात है कि हमारे पास एम्बुलेंसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन सीएसआर में कोई भी क्लोज में ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी हमको फ्यूल के लिए चार्ज दे, इसलिए हमको खुद ये निकालना पड़ता है, वॉकिंग डोनर्स के जो भी दे जाते हैं उसमें से चार्ज निकालना पड़ता है। और हमारे ज्यादातर हमारी एनजीओ है वो अतुल है, फिर यूपीएल है, फिर बोरोसिल है, जीएनएफसी है, पेट्रोनेट एलएनजी है, ऐसी ही मल्टीनेशनल कई कंपनियां हैं, इनके साथ सीएसआर से जुड़ी हुई है और ये हम कार्य कर रहे हैं। हमारे पास सीएसआर 1 सर्टिफिकेट भी है। और एक मैं बोला कि अभी एजुकेशन की बात करूं, बोलते हैं कि भाई ड्रॉप आउट रेशियो, तो हेल्थ में भी ड्रॉप आउट रेशियो है। अगर कोई पेशेंट को हेल्थ में मानो कि हेल्प नहीं मिलती है तो वो छुट्टी लेके घर चला जाएगा, तो फिर उनकी स्थिति और बिगड़ती जाएगी और लास्ट में वो केस कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए वो ड्रॉप आउट रेशियो कम करने के लिए भी ये काम करना जरूरी है और ये काम हमारी ये संस्था कर रही है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तो अपना जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है वो उस पे ज्यादा हमको ध्यान देना चाहिए। अपने अपने तो फील्ड में सब काम करते ही है, लेकिन कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के लिए सबको एक मिलके ये काम करना होगा। और हमारे कहीं ऑब्जेक्टिव्स अभी ये मानो के डायग्नोसिस, हम हर साल 20 से 25 लाख रुपया
डायग्नोसिस में लगाते हैं, MRI, CT स्कैन, लेकिन आज तक किसी कॉर्पोरेट ने हमको इसमें फंडिंग नहीं किया है। तो हमको क्या है, वॉकिंग डोनर्स में से हमको ये सब करना पड़ता है। तो भरूच को ऐसा बड़ा सिटी नहीं है कि जहाँ से साइजेबल डोनेशन मिले हमको। हाँ, तो एक लिमिटेशन है भरूच का, तो इसमें से सच्ची बात, सच्ची बात, नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। मेरी बात सुनो, मेरे पास अभी कोई भी इधर से अनाथ आदमी जाएगा तो शाम को फोन हमको आता है कि इधर एक अनाथ आदमी पड़ा है, तो हमारी गाड़ी आके ले जाती है। हमारे पास अभी 450 अनाथ आदमी है, जो इसमें से 300 तो आउट ऑफ गुजरात के हैं, जिनकी लैंग्वेज हमको मालूम नहीं है, इररिलेवेंट बिहेवियर है। उनके लिए आज 25 साल की NGO है हमारी, 25 साल की, लेकिन उनके लिए एक अनाथालय नहीं बना सकती है। बोलो, हमारी खुद की बैठने की ऑफिस नहीं है। वो तो अभी PLL कंपनी ने हमको CSR में से 2 ऑफिस लाके हमको पोर्टा केबिन वेल फर्निश लाके दिया, थैंक्स टू PLL, कि हम उसमें बैठ के काम कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा टर्नओवर अच्छा है, हमारा NGO का टर्नओवर अच्छा है, लेकिन मैंने अभी भी बोला कि लाइक सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, बम्बई, ऐसा भरूच में से साइजेबल डोनेशन तो नहीं मिलता। फिर NGO वाले भी कितना तो फुटवर्क करेंगे, इतना फुटवर्क करेंगे तो फिर अपने जिसके लिए सेवा करनी है तो वो छूट जाएगी। हाँ,